So today we are doing revision from lesson 1. What is the name of lesson 1? India size and location. India size and location. In this, the most important short answer question is latitudinal extent. What is the latitudinal extent? Say again. 8 degree 4 north and 37 degree 6 north. Minute. Degree and minute. You have to say degree and minute. 8 degree 6 minute north to 37 degrees 6 minute, 8 degree 4 minute north to 37 degrees 6 minute north. Okay. What is the longitudinal extent? 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. Why it is said as east? Because vertically also the globe is divided into two halves. वर्टिकली है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर एक लाइन खींचेंगे हम, दो जैसे प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं, प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड and just behind the prime meridian lies the 180 degree longitude. So from this line of prime meridian, when the earth is divided vertically, it is known as eastern hemisphere and western hemisphere. East of prime meridian is known as eastern hemisphere and west of prime meridian is known as western hemisphere. So India lies completely in the eastern hemisphere. In which hemisphere does India lie? Eastern hemisphere. When you are writing about the location of India, you will write that India completely lies in northern hemisphere and also in eastern hemisphere. Okay. The total length of coastline of Indian mainland includes Andaman Nicobar and Lakshadweep also. The land boundary is about 15,200 kilometers and coastline is about, say again, 7,516.6 kilometers. 7,516.6 kilometers. Okay. India is bounded by see this line? India is bounded by the young fold mountains in northwest. संडे टेस्ट का पोर्शन क्या होगा? हेलो, फिर से बोलो. संडे टेस्ट का पोर्शन क्या होगा? वो अभी तुमको बताया जाएगा, वो ना इस बार ज्योग्राफी नहीं रहेगा, वो रहेगा हिस्ट्री नहीं, सिविक्स और इकोनॉमिक्स रहेगा. ठीक है, अभी हम लोग डाल देंगे व्हाट्सएप पे, वो तुम व्हाट्सएप पे डायरेक्टली देख लेना. अब यहाँ देखो, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट. That means India is bounded by Himalayas on its whole of the northwestern side, northern side and northeastern side. It begins to taper. Taper means narrow होने लगता है. It begins to taper and extends towards Indian Ocean, dividing it into two seas. Let's see the participant. 1 minute. I'm 18. Ocean. Listen, Indian Ocean is divided into two seas. Why? Due to the peninsular shape of India. Tapering is the peninsular shape of India. India begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degrees. Yesterday I had explained you how the latitudinal extent is difference is 30 degree and longitudinal difference is also of 30 degree. कल बताए थे ना कैसे ये निकालते हैं? Yes, ma'am. जैसे latitudinal difference अगर निकालना है तो 37 डिग्री 6 मिनट में से क्या माइनस करेंगे बताओ? 8 डिग्री 4 मिनट माइनस करेंगे तो latitudinal difference निकल गया. उसी तरह 80
डिग्री 25 मिनट ईस्ट में सो उधर का ईस्टर्न जो है 68 degree 7 east. 68 degree 7 minutes. ईस्ट टू बोलो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 7 minutes. डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो वो डिफरेंस निकल आता है। तो दोनों ही डिफरेंस कैसा है इंडिया का, बराबर ही है। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इज आल्सो 30 डिग्री, लैटिट्यूडनल डिफरेंस इज आल्सो ऑफ 30 डिग्री। एंड डिस्पाइट दिस फैक्ट, यही क्वेश्चन न कल बताए थे, याद है ना, कल थे तुम लोग सब क्लास में, बोलो। Yes, ma'am. हाँ, तो डिस्पाइट दिस फैक्ट east west extension appears to be smaller than the north south extent। मतलब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ज्यादा बड़ा है, नॉर्थ साउथ किलोमीटर में वो डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है वो कम है। ऐसा क्यों है? डिग्री में बराबर है दोनों, और हम तुमको वो भी बताए थे कि ये 1 डिग्री इक्वल्स टू कितने किलोमीटर? 1000. मान्या बोलो। 1000. 111.32 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको फिर से लिखो, जो जितने बच्चे नहीं लिखे हैं। 1 डिग्री किलोमीटर में कितना होता है? 1 डिग्री इक्वल्स टू 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। लिख लो इस क्वेश्चन को, यहाँ समझो। ये पैराग्राफ में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या है? डिस्पाइट दिस फैक्ट, मतलब ये फैक्ट है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों डिफरेंस 30 डिग्री का ही है, लेकिन जब किलोमीटर में डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो नॉर्थ साउथ डिस्टेंस बड़ा निकलता है और ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो छोटा निकलता है। मैप में देखे हो ना? हाँ, रिप्लाई। Yes, ma'am. ये देखो, ये डिस्टेंस यहाँ देख रहे थे ना तुम लोग, ये ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर ओनली, and north south distance is 3214 kilometer. So this is the difference in kilometers. डिग्री में दोनों बराबर है, लेकिन किलोमीटर में मेजर करने पे ये डिफरेंट आता है। क्यों? तो इसके आंसर में तुमको क्या लिखना है? Because the latitude is parallel. हाँ, latitudes are parallel lines, but longitudes are not parallel line, right? As we move north or south of equator, the distance between two longitudes goes on decreasing. दो longitude के बीच की दूरी घटते जाती है। यहाँ से देखो, ये पॉइंटर दिख रहा है, तो यहाँ जितनी दूरी है दो longitude के बीच में, आगे जाओगे तो ये और भी घट जाएगी, और भी नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो ये दूरी घटते चली जाएगी, क्योंकि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो पोल पे जाकर ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का दोनों का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस बट लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल लाइंस। एंड इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज मेजर्ड अप्रॉक्सीमेटली नियर Tropic of Cancer. So the distance here, the distance between two longitudes is lesser than the distance between two longitudes on equator. Equator समझते हो ना? 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड के पास सबसे ज्यादा इसका ये है डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड के बीच का, और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो डिस्टेंस घटता चला जाता है। देख रहे हो ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में वो घट के और आगे इतना हो गया, और आगे बढ़ोगे और इतना हो गया। इसीलिए यहाँ पे ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस जो है वो कम है। ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस किलोमीटर में कम है नॉर्थ साउथ डिस्टेंस के कंपैरिजन में। समझ गए? अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलें। तुम लोग के लिए आज हम एक और रिवीजन का नोट्स लाए हैं कुछ मैप के साथ। ये देखो, हाँ ये वाला देखो, दिख रहा है सबको? आर यू सीइंग? नहीं दिख रहा है मैम, नहीं दिख रहा। मैम सिर्फ मैप दिख रहा है। अच्छा, ये जो शेयर किया नहीं दिख रहा है? अच्छा नो मैम।
रुक जाओ, दिखाते हैं, ट्राई करते हैं। तुम लोग अगर शुरू वाले क्लास में होगे ना, तो हम लिखे थे डिफाइन द फॉलोइंग स्ट्रेट, इस्थमस, पेनिनसुला, पास एंड आइलैंड। ये दिखा न्यू शेयर क्लास 9 images। विजिबल होगा तो बता देना। Yes, ma'am. है visible. विजिबल हो गया? अच्छा मैम विजिबल है। अच्छा, वेरी गुड। चलो, अब तुम लोग में से कितने लोग ये आंसर लिखे हुए हो कॉपी में, बताओ। जो हमने भेजा था, व्हाट्सएप में भी भेजे थे, स्नैप में भी भेजे थे ये। और Yes, नहीं, ma'am. अगर जो नहीं लिखे हो फटाफट लिख लो। डिफाइन द फॉलोइंग लिखो तो। ऐसे हम आज के व्हाट्सएप में भी भेज दिए हैं, है ना, तो इसको समझ लो, है ना, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसको देख के बाद में लिख लेना। तो पहला क्या डिफाइन करना है? स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। स्ट्रेट किसको कहते हैं? इस्थमस किसको कहते हैं? पेनिनसुला किसको कहते हैं? इसमें से तुम कौन सा जानते हो, पहले से बताओ। डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ पेनिनसुला? Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. A land surrounded by water on three sides. वेरी गुड। एग्जाम्पल? Example: Indian Peninsula, Malaysian Peninsula. हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसे ही हमने बताया भी था। और हम लोग यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। स्ट्रेट, व्हाट इज अ स्ट्रेट? आंसर देखो, ये तुमको नोट्स भेजा हुआ है, तुम उसको कॉपी में अच्छे से उतार लेना। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है, क्योंकि ये वर्ड यूज हुआ है इस लेसन में, तो इसका मीनिंग जानना चाहिए। स्ट्रेट, व्हाट इज अ स्ट्रेट? अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर which separates two big land masses. For example, पाक स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट पहले देख लो कि इंडिया एक मेनलैंड है, उसके बाद एक लैंड है, ये एक लैंड मास है श्रीलंका, दोनों में एक नैरो गैप है। तो इस नैरो गैप में जो वाटर बॉडी है, इसी को स्ट्रेट कहते हैं। Strait is a narrow stretch of water which separates two land masses. For example, Pak Strait, which lies between India and Sri Lanka. Okay? Repeat karo. What is a strait? A narrow stretch of water which separates two big A land narrow masses. stretch of water which separates two land masses. For example, Palk Strait, Bering Strait, हाँ, ये etc. बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है? तुम वर्ल्ड का मैप निकाल के सामने रखोगे ना, वर्ल्ड मैप, तो उसमें एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एकदम नैरो वाटर बॉडी है, एकदम नदर्न हेमिस्फीयर में, पोलर रीजन के पास, बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है ना? अभी अभी बुक में भी तुम देख सकते हो, पेज नंबर, हाँ, ये जो फर्स्ट पेज में जो वर्ल्ड का मैप है ना, उसमें लास्ट देखना, जहाँ एशिया का ईस्ट में एंड हो रहा है, और उसके बाद क्या शुरू हो रहा है? नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न साइड शुरू हो रहा है। तो उन दोनों के बीच में जो वाटर बॉडी है ना, उसी को कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, और यहीं से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है। ठीक है ना? 180 डिग्री मतलब वो जो है ना लॉन्गिट्यूड, यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन भी जिसको कहते हैं वो। दूसरा क्या है देखो, दूसरा है ये इस्थमस, ठीक उसके अपोजिट, जो स्ट्रेट है ना, ठीक उसके अपोजिट क्या है? इस्थमस, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू बिग वाटर बॉडीज। नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, ये मैप में दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो, ये नैरो लैंड है ना, ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और दोनों एक नैरो लैंड से जुड़ा हुआ है। तो इधर पैसिफिक और इधर इधर अटलांटिक और पैसिफिक दोनों को सेपरेट कर रहा है। दो ओशन है ना, बताओ इधर कौन सा ओशन है? नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है, बताओ। Pacific. हाँ, पैसिफिक ओशन।
तो पैसिफिक और उधर मतलब इधर इसके ईस्ट में है अटलांटिक, इधर इधर Atlantic. Atlantic. इस तरफ क्या है पैसिफिक ओशन और इस तरफ क्या है अटलांटिक ओशन। तो ये दोनों बड़े ओशन को एक नैरो लैंड जो है वो सेपरेट कर देता है, करता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ नैरो लैंड which separates two big water bodies is known as isthmus. And what is the name of this isthmus? Bolo. Isthmus of Panama. तो Panama. बाद में लोगों ने क्या किया कि वहां के कि ये isthmus को ऐसे डिगिंग करके कट करके और कैनाल बना दिया, ब्रॉड कैनाल। तो यहाँ से अटलांटिक में आने वाले शिप जो है ना अब इजीली इधर पैसिफिक में चले आते हैं, ठीक है ना। नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था, ऐसे लंबा चक्कर लगा के साउथ अमेरिका का, तब ये लोग इधर आते थे, बहुत समय लग जाता था। अब क्या है कि उधर वाले शिप इधर आने में ये शॉर्टकट हो गया। तो यहाँ पे क्या बना दिया गया, इस पनामा कनाल, ठीक है ना। पनामा कनाल याद रखना। ऐसा ही एक और भी है सुएज कनाल जो एशिया में है, एशिया के नॉर्थ पार्ट में, वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो वो भी एक एग्जांपल हो गया इस्थमस ऑफ सुएज। पेनिनसुला तो तुम बता ही दिए कि अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, मलेशियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, कोरियन पेनिनसुला, बहुत सारे। अब ये देखो पास किसको कहते हैं, जैसे चेन ऑफ माउंटेन, देख रहे हो ना ये मैप, चेन ऑफ माउंटेन। तो माउंटेन जहां जहां कहीं पे बीच में गैप होता है, इस गैप का भी हाइट काफी होता है, लेकिन वो चेन ब्रेक होता है यहाँ पे माउंटेन का। तो उस रास्ते को क्या कहते हैं, पास कहते हैं, समझ गए ना। तो बहुत सारे पास का एग्जांपल दे सकते हो इंडिया में, नाथुला पास, इधर नॉर्थ वेस्ट में जोजिला पास, बोलन पास। एशिया में ना इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान के तरफ बहुत सारे पासेस हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी है बॉम्डिला पास। तो एग्जांपल के लिए बस थोड़ा सा याद रखना, एक नाथुला पास याद रखो, सिक्किम में है नाथुला पास, ठीक है ना। और जब लेसन 2 पढ़ रहे थे तो ये सब भी मिला था तुमको, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट मिला था ना, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. अब देखो लास्ट में क्या है, आइलैंड। तो आइलैंड तो बहुत सिंपल है कि अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज नोन एज आइलैंड। ग्रीनलैंड इज अ वेरी गुड एग्जांपल, है ना। ग्रीनलैंड कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका से भी नॉर्थ में है ग्रीनलैंड। ये जो नॉर्थ अमेरिका का मैप देख रहे हो ना ये वाला, इसी के नॉर्थ में बिगेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, इसको यहाँ पे ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को असल में कॉन्टिनेंट में रख दिए है ना, इसलिए उसको कॉन्टिनेंट में गिनती कर, लेकिन है वो भी चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है। और ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एक छोटा सा आइलैंड है जिसको कहते हैं टस्मानिया आइलैंड, ठीक है ना। तुम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे अभी वर्ल्ड मैप में तो तुम्हें दिखेगा टस्मानिया आइलैंड। न्यूजीलैंड भी क्या है, वो भी तो आइलैंड से, उसमें भी कई सारे से, न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है ना, थोड़ा सा साउथ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया से। So this is all about your some geographical terms. और कोई टर्म है ऐसा जो कि तुमको जानना है, कोई छूटा है तो बताओ। इस्थमस, आइलैंड, पास, ये सब तो हो गए, यही सब टर्म यूज हुआ है बुक में, है ना, इस लेसन में। तो अब यहाँ जो एक मेन क्वेश्चन है ना, जो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ये वाला पोर्शन देखो, वो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के ऊपर जो क्वेश्चन है, ये फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time. है ना, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा के भी पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन तो यहाँ बुक में ही लिखा हुआ है, यहाँ तुम्हारे सामने, why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian, और एक लेसन में लिखा हुआ है
है ना, बैक साइड में जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन लिखा हो। तो इसका नोट्स भी हमने भेजा था, आज भी भेज दिए हैं, ठीक है। आज इसलिए दोबारा भेजे हैं कि जो बच्चे अभी तक नहीं लिख पाए होंगे उनके लिए हम भेज दिए। तो बताओ तुम लोग कि ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास आंसर, कुछ बच्चों के पास? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. जिन बच्चों के पास नहीं लिखा हुआ है, अनीश कुमार बोलो, अनीश, अंशिका, अरसलान, सबके पास है? तो सब जिसके पास भी नहीं हो ना, ये आंसर जरूर लिख लेना कि बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसका आंसर जो है वो हमने भेजा है, क्या पढ़ के सुनाओगे या हम रीडिंग कर दें? क्वेश्चन क्या है लेसन में कि द सन राइजेस 2 hours 2 earlier hours earlier. Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? Answer: the longitudinal difference from extreme east to extreme west of India is about 30 degree, and 15 degree is equal to 1 hour. Therefore, 30 degree is equal to 1 मिनट, एज 2 hours. टू 1 hour। 15 डिग्री का मतलब क्या होता है? टाइम में कितना लगता है 15 डिग्री को सन के सामने से क्रॉस करने में? 1 hour। 50 इक्वल्स टू 1 hour एंड 30 डिग्री मीन्स 2 hours। हाँ, तो एक्चुअल में एकदम एक्सट्रीम ईस्ट जो इंडिया का है अरुणाचल प्रदेश, और एक्सट्रीम वेस्ट गुजरात का कोस्टल एरिया, तो वहां पर ना ये डिफरेंस है। एक्चुअली में इंडिया में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, लेकिन इसी को खत्म करने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन के ऊपर के टाइम को पूरे कंट्री में मान लिया गया है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या सेलेक्ट किया गया है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हाँ, ये लगभग बीच से जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट passes almost through middle of the country. So this longitude has been selected as standard meridian, and the local time over standard meridian is accepted for the whole country, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ने टाइम डिफरेंस को अपने लेवल पे इराडिकेट किया है, समाप्त किया है, ठीक है ना। ना ही हम अरुणाचल प्रदेश के टाइम को फॉलो कर रहे हैं, ना ही गुजरात के टाइम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह में 5 बजे सनराइज हो जाता है, तो गुजरात में सनराइज होने में कितना बज जाएगा? 7 बज जाता है ना। तो एक्चुअल में तो टाइम डिफरेंस है, लेकिन हमारे घड़ी सेम टाइम शो करें, इसके लिए वो ये सेलेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो गुजरात में पहले सनराइज, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में पहले सनराइज होगा क्योंकि वो ईस्ट में है, ठीक है ना। और वेस्ट में कौन है? गुजरात का है। तो गुजरात, मुंबई या गुजरात के कोई भी टाउन ले लो, तो वहां पे सनराइज होने में देर लगती है, 2 घंटे की देरी लगती है। तो लेकिन हमने टाइम डिफरेंस को खत्म कर दिया है। कैसे खत्म किया? एक स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट कर लिए। तो कौन सा स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये? 82 degree 30 minute. East longitude. 82 degree 30 minute east longitude is the standard meridian of India. तो इसके ऊपर जो टाइम, लोकल टाइम होता है ना, लोकल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 12 नून 12 बजे जो दोपहर होता है वो किसको मानते हैं? जब सन एकदम वर्टिकल ओवरहेड होता है ना, 90 डिग्री के एंगल पर होता है किसी भी लॉन्गिट्यूड के ऊपर, तो वो वहां के लिए 12 बजे दोपहर का समय होता है, ठीक है। When the sun is completely vertical over any longitude, it is 12 noon for that longitude. तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के ऊपर जो सन वर्टिकल होता है, तो यहाँ का क्या टाइम होता है? दोपहर का 12 बजे, और उसी हिसाब से ये टाइम फिर आगे बढ़ता जाता है। तो ये इस तरह से हम ना, कहने का मतलब कि हम 30 डिग्री की वजह से जो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस था, उसको समाप्त करने का एक यही तरीका था कि एक बीच का लॉन्गिट्यूड ले लिया जाए और उसके ऊपर का लोकल टाइम को पूरे कंट्री के लिए मान लिया जाए, ठीक है ना। अब बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसका 30 डिग्री का ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नहीं है, वो 90 डिग्री 120 डिग्री में फैला हुआ है,
120 डिग्री लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे तुमको रशिया, यूएसए, ब्राजील, चाइना, ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो बहुत उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है। तो वो ना सिर्फ एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से काम नहीं चला सकते हैं, तो उनको अपने कंट्री को ना 3-3, 4-4 टाइम जोन में डिवाइड करना पड़ता है, और एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में 1-1 घंटे का फर्क होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में उन लोगों को अगर कोई जर्नी कर रहा है, फ्लाइट से कोई जा रहा है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका टाइम बैक हो रहा है 1-1 घंटे का, और या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो 1-1 घंटे का समय आगे हो रहा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में टाइम का रेफरेंस कहाँ से लिया जाता है? GMT से लिया जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये ग्रीनविच क्या है बोलो? ग्रीनविच इज अ स्मॉल टाउन वेरी क्लोज टू लंदन। Greenwich is a very small town very close to London. And why this place has been given this importance? Because 0 degree prime meridian passes through Greenwich. ग्रीनविच में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो पास करता है, तो पूरे दुनिया का वहीं से हम लोग टाइम का रेफरेंस लेते हैं, तुलना करते हैं कि ग्रीनविच से हम कितना आगे हैं या पीछे हैं टाइम में। तो इंडिया चूंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। हाँ बोलो। ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग कितना आगे हैं बताओ? 5.5 घंटे आगे। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग रिवीजन कर लें, कंप्लीट कर लें। तो अब तुमको शुरू में ही बताए कि 360 डिग्री होता है एक स्फीयर में। एक स्फीयर में कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे? 360 डिग्री, और 24 आवर्स लगता है एक रोटेशन में, एक बार स्पिन करने में, एक बार घूमने में अर्थ को अपने एक्सिस पर कितना लगता है? 24 आवर्स। तो तुम जब 24 से 360 में डिवाइड करोगे ना, तो ये निकल आता है 15, है ना। तो इसमें पता चलता है कि 15 डिग्री में कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है। तो ग्रीनविच से अगर कोई चीज 15 डिग्री, कोई प्लेस 15 डिग्री आगे है तो वो 1 घंटा आगे हो गया, ठीक है ना। मतलब इसकी तरफ अगर आगे है तो 1 घंटा उसका टाइम आगे हो गया। अगर कोई प्लेस ग्रीनविच से 30 डिग्री आगे है तो वो 2 घंटे आगे हो गया, ईस्ट की तरफ अगर है। तो ऐसे इंडिया ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ है, और कितना आगे है? लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट बढ़ाते आते इंडिया कितना आगे हो जाता है ग्रीनविच से? 5 आवर्स 30 मिनट आगे हो जाता है, ठीक है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, कितना अहेड है? 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है ना। तो ये नोट्स आज हम फिर से भेज दिए हैं उन बच्चों के लिए जो लोग शुरू में क्लास नहीं किए थे, ठीक है ना। और तुम लोग इसको फिर से उतार लो, जिसका पास है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, स्वेज कैनाल पे क्वेश्चन दिया गया था पिछली बार? बोलो। नो मैम। स्वेज कैनाल पे लिखे थे कोई क्वेश्चन? नहीं? यस मैम। हाँ बताओ, आंसर पढ़ के सुनाओ ना, छोटा सा आंसर है 3 लाइन का। Yes, ma'am. Ma'am, Suez Canal connects Red Sea with Mediterranean Sea. It was opened in 1869. It is very important because the distance between India and Europe has been reduced by 7,000 kilometers. हाँ वेरी गुड, बस इतना ही तो लिखना है। यहाँ देखो बॉक्स में लिखा हुआ है, इसी को हमने थोड़ा और क्लियर करके लिखा दिया था कि स्वेज कैनाल कहाँ पे है। तो स्वेज कैनाल रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में एक छोटा सा पतला सा लैंड था, इस्थमस ऑफ स्वेज उसको कहते हैं। इस इस्थमस को काट करके और क्या बना दिया गया? स्वेज कैनाल बना दिया है। तो रेड सी में एंटर करके और सीधा मेडिटेरेनियन सी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी इंडिया से यूरोप जाने का डिस्टेंस कितना सेव होता है? 7,000 किलोमीटर्स, रिड्यूस बाय 7,000 किलोमीटर। नहीं तो इंडिया को क्या करना पड़ता था कि पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के
तब यूरोप पहुंचना होता था, ठीक है ना। तुम इस मैप में देखो, वर्ल्ड मैप में, ये जो पहले फर्स्ट लेसन में तुम्हारा वर्ल्ड मैप था ना, एक मिनट उल्टा देखो, हाँ ये मैप भी ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ से अगर जाना है इंडिया से, ये इंडिया देख रहे हो, मुंबई, यहाँ पे मुंबई, तो मुंबई से चलेंगे तो ऐसे जाकर के पूरा अफ्रीका के साउथ से होकर के तब दूसरे नेक्स्ट साइड निकलते थे। हम शो नहीं कर रहे। शो नहीं कर रहा है? अच्छा एक मिनट रुक जा, हम देख लेते हैं फिर से। ये दिख रहा है कि नहीं बताओ तो, ये बुक में दिख रहा है? नो मैम। No, ma'am. अच्छा एक थॉमस वाला भी इस्तेमाल वाला ही दिख रहा है, हाँ न्यू शेयर में देख, अभी दिखा? यस हाँ तो ये बता रहे थे, Yes, ma'am. देखो ब्लैक पॉइंटर देखो, यहाँ से इंडिया से चलेंगे तो जैसे मुंबई से चलेंगे ना, मुंबई से तो ऐसे पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा करके तब हमको यूरोप पहुंचना होता था इधर। और अब क्या है, ये डिस्टेंस शॉर्ट हो गया, अब मुंबई से स्टार्ट होके इसमें आएंगे रेड सी में। रेड सी दिख रहा है, यही है रेड सी, लॉन्ग नैरो सी, दिस इज रेड सी। और ये कौन सा सी है? ये है मेडिटेरेनियन सी, ये वाला पॉइंटर दिख रहा है तुम लोग को? यस मैम। Yes, ma'am. और यहाँ पे स्वेज का एक लैंड है, स्वेज, इसको इस्थमस ऑफ स्वेज कहा जाता है, तो इसको डिगिंग करके रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर दिया गया। तो तुम अब देखो, इमेजिन करो कि यहाँ से अब शिप एंटर करते हैं रेड सी में और रेड सी से